Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Samir Sardana, a plus educator on Unacademy. In this video, I will be discussing with you about IITs. बहुत बच्चे ये बिलीव करते हैं दैट IIT से MBA करने के लिए आपके पास BTech का डिग्री होना जरूरी है. It's not true. It's not true for all the IITs. There's some IITs which require you to have a BTech degree, but there are also some IITs which accept the general bachelor degree, right? So अगर आपने BCom किया है या BA किया है या कोई भी कोर्स में सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री की है, you are eligible for some of these IITs, right? So we are going to discuss details of eligibility for all of the IITs, right? IIT दिल्ली के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, बीटेक डिग्री किस IIT के लिए चाहिए, या बीकॉम डिग्री किस नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री किस IIT के लिए काम करेगा. So we are going to discuss the eligibility criteria of all the IITs which are offering the MBA programs. Cutoff, what is the required cutoff to get a CAT score, right? You should know that कि IIT में एडमिशन लेना है तो CAT का पेपर देना ही पड़ेगा. CAT score is the only score which is acceptable in all IITs. So CAT के थ्रू आप IITs में जा सकते हो. BTech का होना कंपल्सरी नहीं है. कुछ IITs में कंपल्सरी है बट कुछ IITs में नहीं है, राइट? मोस्ट ऑफ IITs में नहीं भी है. सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितना वेटेज आपके ग्रेजुएशन को मार्क्स को है, व्हाट इज द वेटेज गिवन टू योर score in CAT and so on. So we are going to discuss about the selection process and the important dates, right? So let's have a look at it, guys. Starting from IIT Delhi, right? This beautiful college, right? And if you look at the level of these college, guys, right? If you look at the rating of these colleges, the placement of these colleges, these are excellent college. If you're getting a chance of going into any of these IITs, you should definitely go for it. In fact, I would recommend some of the IITs to you, right, compared to the baby IIMs, right? जैसे IIT दिल्ली का प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, right? इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है. So दूसरी अच्छी बात यह है कि CAT के पेपर के बाद, once you will be done with your CAT paper, you will have the option of filling the IIT's form. So कुछ ऐसे MBA के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसको फिल करने के लिए आपको कैट के पेपर से पहले ही फॉर्म का फिल करना है. यू डोंट नो कि आपका कैट का पेपर कैसे जाने वाला है, बट यू विल हैव टू फिल द फॉर्म. IITs में मोस्टली आपको डेट्स एग्जाम के बाद मिलेंगी, राइट? तो आपका एग्जाम हो जाएगा, तब तक उसके बाद आप IIT दिल्ली का एग्जाम फिल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उतना स्कोर लेके आने वाले हो या नहीं लेके आने वाले हो. IIT दिल्ली में फीस जो है 9 से 10 लाख है, बहुत ज्यादा भी नहीं है. Compared to IIM, it is less, right? If you compare this fees to IIM's fees and other colleges like IMT Ghaziabad, IIMI New Delhi, जो इसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, right? IMT Ghaziabad, IIMI Delhi, Ford School of Management, right? Lal Bahadur Shastri and XIM Bhubaneswar, Goa Institute of Management, right? All these colleges which fall into this category, right? You have an IIT Delhi also. राइट, इसी कैटेगरी में IIT दिल्ली आएगा. और फीस कंपेरेटिवली IMT, IMI और काफी IIM से कम है. इसका कट ऑफ रिक्वायर्ड इज 95 to 99 परसेंटाइल. नाउ 95 पे कॉल डेफिनेटली आ जाएगा, बट टू बी ऑन द सेफ साइड यू नीड टू हैव अ बेटर परसेंटाइल. अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है कैट के अंदर, तो बहुत चांसेस है कि आप IIT दिल्ली कन्वर्ट कर जाओगे. प्लेसमेंट आपको 18 से 20 लाख का एवरेज पैकेज एज पर द वेबसाइट, राइट? दिस सोर्स ऑफ प्लेसमेंट हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ओनली, राइट? ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? क्या बीटेक डिग्री रिक्वायर्ड है? गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स जिनके पास बीटेक डिग्री नहीं है. यू कैन फिल दिस फॉर्म. You can fill this if you have a normal bachelor degree. A minimum of 60% marks in aggregate or 6.00 CGPA on a 10-point scale for equivalent in the qualifying degree is required to get into IIT. 5% का relaxation मिलेगा अगर आपके पास SC, ST, PWD का कोटा है तो, right? Candidate appearing for the final year of the examination, अगर आप बैचलर डिग्री की फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, राइट? कैट का स्कोर आपका कंसीडर होगा. दोज हु हैव अप्लाइड टू IIT Delhi MBA programs on qualifying the CAT will be shortlisted and then invited for an interview which will be held at IIT Delhi, right? So eligibility criteria में BTech होना for IIT Delhi is not necessary, right? It's not a must condition, right? So you can go for IIT Delhi, guys. सिलेक्शन प्रोसेस था इसका, जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, DOMS, IIT दिल्ली. शॉर्टलिस्टिंग एंड एडमिशन क्राइटेरिया फॉर MBA 2021-2023 के लिए जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021-20 आप जा रहे हो 2022-2024 के प्रोग्राम्स के लिए,
तो लास्ट ईयर जो उन्होंने वेटेज दिया था डिफरेंट डिफरेंट को, इस साल भी ऑलमोस्ट वही वेटेज रहने वाला है, राइट, 2022 2024 के लिए, राइट। बट अभी उसका कुछ अपडेशन मुझे वेबसाइट पे नहीं मिला, 2021 2023 का अवेलेबल है, सो 99% यही होने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। कैट का ओवरऑल कैट स्कोर, मैक्सिमम कैट स्कोर, राइट, कैट का जो वेटेज है वो है 65 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स में से 65 मार्क्स वेटेज है कैट के स्कोर को, 65% वेटेज। दैट मीन्स कैट इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप कैट में परसेंटेज, बहुत सारे बच्चों को जिनको अकेडमिक्स की वजह से प्रॉब्लम होता है कि 60s की रेंजेस में है, आईएम से कॉल नहीं आने वाला है, और उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब इश्यूज हैं, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है अगर आप कैट में अच्छा स्कोर ले आओ, बिकॉज कैट का वेटेज बहुत ज्यादा है इसमें, राइट। हालांकि एकेडमिक्स के वेटेज भी हैं यहाँ पे, बैचलर डिग्री मार्क्स का 7 मार्क्स है, 12th का 6 मार्क्स का वेटेज, 10 का 6 मार्क्स का वेटेज। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ मार्क्स, आपका 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 में जो भी आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन 10th 12th और 10th में, आपको आउट ऑफ 7 6 एंड 6 मार्क्स असाइन होंगे। तो कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगा ही, राइट। और अच्छे मार्क्स हैं तो देन यू विल हैव अ गुड चांस। तो 65% ये, और अगर आप 80s में हो तो आप देखो 65 मार्क्स का वेटेज, कैट का स्कोर अगर आप अच्छा लेके आओ 6 + 6 + 7, 19 में से अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, फिर तो आईआईटी दिल्ली के चांसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, राइट। वर्क एक्सपीरियंस के भी 6 मार्क्स का वेटेज है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द वर्क एक्सपीरियंस, आउट ऑफ 6 मार्क्स विल बी असाइन टू यू डिपेंडिंग अपॉन योर ईयर्स। एंड जेंडर डाइवर्सिटी गाइस, डेफिशिएंट ऑफ मेल एंड फीमेल, सो जेंडर डाइवर्सिटी के भी 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट, गुड फॉर द फीमेल कैंडिडेट। ग्रेजुएशन अगर आपने आईआईटी या एनआईटी से किया तो उसका सिर्फ 5 एक्स्ट्रा मार्क्स है, इट्स नॉट अ मस्ट कंडीशन। अगर आपने आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएशन किया देन यू विल बी गेटिंग अ 5 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट, राइट। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आईआईटी दिल्ली का। तो सभी बच्चों को आईआईटी दिल्ली के लिए ट्राई करना है अगर आप 95 प्लस का स्कोर लेके आने वाले, 95 प्लस अगर एक्सपेक्टेड रहे है आपका कैट में, कैट का पेपर देने के बाद आपको आईआईटी दिल्ली को हमेशा डेफिनेटली ऑप्शन में रखना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट इट इवन बेटर देन आईएमटी आईएमआई। मेरा सेशन ये रहेगा क्योंकि फीस कम है, राइट, प्लेसमेंट भी आपको उतना ही मिलने वाला है जितना आपको वहां से मिलेगा, और आईआईटी का ब्रांड वैल्यू, राइट। आईआईटी बॉम्बे स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ, राइट। अगेन यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ फिलिंग द आईआईटी बॉम्बे फॉर्म, राइट। फीस इसका 13 to 14 लाख है। कट ऑफ अगेन सभी आईआईटी से कट ऑफ 95 से 99 के बीच में ही है, सो 95 प्लस पे ही आपको आईआईटी से कॉल आने के चांसेस हैं। प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट 21 to 22 लाख। आईआईटी बॉम्बे ब्यूटीफुल कैंपस, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या बीटेक चाहिए? गुड गुड न्यूज फॉर यू गाइस, नो। बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ST PW, और a minimum CPI of 6.5 out of 10 from the university incorporated by an act of, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले 60% मार्क्स के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। Applicant should have secured an aggregate of 60% marks or equivalent till the latest exam that has been complete. अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो तो लास्ट ईयर में हो तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। CA CS CFA अगर आपने कुछ किया विद फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन हैविंग 60% मार्क्स, राइट, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो दैट मीन्स द मेन थिंग इज विदाउट बीटेक डिग्री, अगर आपके पास बीटेक डिग्री नहीं है, BSc है या BCom है या BSc इन एग्रीकल्चर, कुछ भी है, राइट, नॉर्मल BA है, देन यू कैन फिल दिस फॉर्म, राइट। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, मिनिमम परसेंटाइल कट ऑफ स्कोर, राइट। जनरल के लिए मिनिमम ओवरऑल 90 चाहिए। इनका सेक्शनल वाइज कट ऑफ, यू जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, आई गेस आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। EWS और ये OBC के लिए अलग अलग कट ऑफ है, यू जस्ट क्विकली गो थ्रू द स्लाइड। सो 90 प्लस ओवरऑल तो कट ऑफ है, राइट, ओवरऑल तो एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ तो 95 प्लस का ही है, राइट। सो 95 प्लस पे ही आप आईआईटी बॉम्बे से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो। और पैरामीटर्स का वेटेज देखें, कॉम्पोजिट स्कोर जो फाइनल सिलेक्शन में आईआईटी बॉम्बे में फाइनल सिलेक्शन में जो कॉम्पोजिट स्कोर का वेटेज कंसीडर होगा, उसमें परफॉर्मेंस इन कैट 2020 को 70, ओके ये 2020 का है, राइट। इस साल का वेटेज वाला नहीं आया है, 2021 में क्या है, बट 99% आप ये मान के चल सकते हो जब फॉर्म्स आएंगे तो उसमें दिया होगा, राइट। सो 70% वेटेज आपको परफॉर्मेंस ऑफ कैट है, बहुत हाई वेटेज है परफॉर्मेंस, राइट। 12th ग्रेजुएशन जेंडर्ड, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी वेटेज है, ओके। 10th के मार्क्स को वेटेज नहीं है इसमें।
जेंडर डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 10% का है सीधा, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमकॉम किया है या कुछ भी एमएससी किया हुआ है, तो उस केस में 5% का वेटेज है। वर्क एक्सपीरियंस को भी 5%। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा, राइट। और जेंडर डाइवर्सिटी का 10% है, तो गर्ल्स को तो फिल करना ही चाहिए यहाँ पे ये फॉर्म को, राइट। ग्रेजुएशन 10th के वेटेज का टेंशन नहीं है, सिर्फ अगर आप एकेडमिक्स की बात की जाए और वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए, जो बच्चों को मेनली टेंशन रहता है कि यार मेरे पास एकेडमिक्स भी अच्छे नहीं है और वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल में इस पर्टिकुलर कॉलेज में एकेडमिक्स और जेंडर, एकेडमिक्स और आपके वर्क एक्सपीरियंस को 5-5 और 5-15% ही वेटेज है, राइट। तो टेंशन वाली बात नहीं है, और वो भी अगर गर्ल कैंडिडेट के केस में 10% इसको कॉम्पनसेट कर देगा, तो गर्ल्स कैंडिडेट को डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे को माइंड में रखना ही चाहिए, बॉयज को भी, राइट, बिकॉज इतना ज्यादा इफेक्ट आपको भी नहीं करने वाला है ये, राइट। कैट में स्कोर अच्छा लेके आओ तो इजी। फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है उसमें 40% ओवरऑल, राइट, पर्सनल इंटरेक्शन को 40% एंड कैंडिडेट की प्रोफाइल को 15%, राइट। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टिंग के लिए था, राइट। कैंडिडेट स्कोर टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्ट फॉर पीआई, मतलब पीआई से पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है उसमें ये सब पैरामीटर्स कंसीडर होंगे, और शॉर्टलिस्टिंग के बाद जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा फिर फाइनल सिलेक्शन आएगा, तब भी कैट के वेटेज को 40%, इंटरेक्शन तो सारा आपके हाथ में ही है, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन और ईडब्ल्यूएस जो भी ऐसे राइटिंग जो भी होगा, और कैंडिडेट की प्रोफाइल 15%, वो तो जैसे पीछे हमारा शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे अगर आपको उसमें अच्छा है तो इसमें भी अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है आईआईटी खड़गपुर बच्चों। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, दैट मीन्स कैट के रिजल्ट के बाद भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट 31 रहने वाला है। फीस 11 लाख, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आईएमटी आईएमए के कंपैरिजन में बहुत कम फीस है। डेफिनेटली रेकमेंडेड कॉलेज, 90 से 95 कट ऑफ, प्लेसमेंट एवरेज 17 to 18, ओके। और SC ST के लिए फीस थोड़ा और भी कम होगा, 9 लाख रुपीज फीस होगा, राइट। जनरल का 11 लाख फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री, अ मिनिमम ऑफ 4 year ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन और सिविल। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपने बीटेक नहीं किया हुआ है। सो बीटेक इज मस्ट फॉर MBA। अगर आपको MBA IIT खड़गपुर से करना है तो नॉर्मल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, लेट्स से यू डोंट हैव अ बीटेक डिग्री बट यू हैव अ मास्टर डिग्री इन साइंस, आपके पास MSc है इकोनॉमिक्स कॉमर्स में, राइट, मास्टर इन साइंस, और या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक एट अ बैचलर लेवल। आपने बैचलर लेवल पे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है एंड यू हैव अ मास्टर डिग्री, मास्टर आपने MSc MCOM या MSc इकोनॉमिक्स किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर IIT खड़गपुर प्रोग्राम। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बीटेक नहीं है बट मास्टर्स में कुछ ना कुछ होगा, और मैथमेटिक्स अगर आपने बैचलर लेवल पढ़ा देन यू आर एलिजिबल। सो नॉर्मल कैंडिडेट IIT खड़गपुर नहीं फिल कर पाएंगे। जनरल ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ 60%, ये सब तो फैक्ट्स हैं विच यू कैन क्विकली गो थ्रू इट, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशन रेटिंग की बात करते हैं। जो फॉर्म ऑफ फिल करोगे तो उसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड योर अचीवमेंट्स एंड अदर आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट दे विल बी आस्किंग इन द एप्लीकेशन, वो सबका रेटिंग 20% पे रखा है, राइट। तो उसमें स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन और स्पेसिफिकली 10th में कितना जाना पड़ेगा वो इतना मैटर नहीं करेगा। ओवरऑल 20% रेटिंग आपकी एप्लीकेशन पे। VRC को 20% वेटेज, DILR को 10, QA को 10, पर्सनल इंटरव्यू को 40, टोटल आपका 100 हो गया, राइट। VRC का वेटेज एज कंपेयर टू DILR एंड QA ज्यादा है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में, ये चीज को ध्यान रखना है आपको, राइट। और पर्सनल इंटरव्यू यू सी दैट विल इम्पैक्ट यू अलॉट, 40% वेटेज सिर्फ उसका। नेक्स्ट हमारा आता है IIT कानपुर। सो 3 हमने IIT डिस्कस कर लिए, 4th हमारा IIT कानपुर। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी नहीं अनाउंस हुआ है, यू सी दैट नाउ, दिस इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू कैच ऑन। 5 to 6 लाख था लास्ट ईयर तक का, इस साल का अभी रिवाइजन आया नहीं है, हो सकता है रिवाइज भी हो, बट 5 to 6 लाख बहुत ही कम फीस है। 85 से 90% आइल है, राइट। सो जो बच्चे का परसेंटेज थोड़ा कम रह जाए, उसमें अगर आपको कुछ एक ब्रांड बेस्ड कॉलेज अगर चाहिए तो IIT कानपुर कैन वर्क फॉर यू, राइट। प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 12 to 13, फीस भी कम है, दैट मीन्स रिस्क कम होगा, ROI अच्छा मिलेगा, परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ा पेपर कुछ गड़बड़ हो गया पेपर के दिन तो IIT कानपुर को जरूर याद करना, ओके, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओवरऑल कैट स्कोर ऑफ 85% एंड अबव, ठीक है, 85 से अबव वाले को शॉर्ट लिस्टिंग में डालेंगे। 65% एंड अबव 10th में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जनरली बच्चे क्या करते हैं 50 से ऊपर है तो सारे कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर देते हैं,
को यहाँ पे 10th और 12th में 65 से ऊपर मार्क चाहिए। बीटेक, बी और बी आर्क विद मैथमेटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम लीडिंग टू बीएससी इंजीनियरिंग विद मैथमेटिक्स। ओके चलो ठीक है, इसमें नॉर्मल बच्चे तो अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? या फिर 4 डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए लीडिंग टू बैचलर साइंस और डिग्री। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस द 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, मैथमेटिक्स हैज टू बी वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब बीकॉम और बीए ये सब बच्चे गए। मास्टर ऑफ साइंस अगर आपके पास है विद मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएशन, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मास्टर ऑफ साइंस स्पेसिफिकली। या फिर मास्टर अगर आपने किया हुआ है आर्ट्स में इन इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, सॉरी, एमए इकोनॉमिक्स के बच्चे आईआईटी कानपुर का फॉर्म फिल कर सकते हैं विद 65% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, राइट? किसी भी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईआईटीज के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए, राइट? तो नॉर्मल बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं कि आईआईटी कानपुर इज नॉट ओपन। ओके, बीएससी बीकॉम और ये बीए वाले बच्चे तो इसको नहीं फिल कर पाएंगे। आईआईटी मद्रास की बात करें, अभी अगेन लास्ट डेट अनाउंस नहीं है, फीस कम है 8 लाख रुपए, कट ऑफ 90 to 95, पैकेज गुड आरओआई एज कम्पेयर टू द फीस, राइट? सो फीस के मामले में आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि आईआईटीज में कंपेरेटिवली फीस कम है और आईआईटी ब्रांड भी है, राइट? कंपेयर टू नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनी डे यू शुड बी प्रेफरिंग दिस। ओके, क्या इसमें आपको ग्रेजुएशन, राइट ना, गुड न्यूज हियर फॉर द नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल ग्रेजुएट्स, राइट, जिन्होंने बीटेक नहीं किया हुआ है, राइट, बीकॉम या बीएससी या कुछ ऐसा बैचलर किया है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी मद्रास, राइट? बहुत अच्छा कॉलेज है, यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। आईटी ग्रेजुएट हु हैव ऑब्टेन्ड अ सीजीपीए ऑफ 8 एंड अबव ऑन 10 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैट स्कोर। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छा है कि अगर आपका आईआईटीज में 10 सीजीपीए 8 है, राइट, देन यू तो आपको फिर कैट के स्कोर की भी जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर आईआईटी मद्रास। ओके, ग्रेजुएट और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, नॉर्मल 60% का मार्क्स आपको चाहिए बच्चों, तो आप आईआईटी मद्रास को ऑप्शन में रख सकते हैं। बाकी सब बच्चे 90 से 95 की रेंज में जिनका स्कोर एक्सेप्टेड है, बट कोशिश करो कि 95 प्लस लेके आओ। एलिजिबिलिटी में एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का भी है यहाँ पे, कंपनी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर आईआईटी, बट उसमें आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कॉमन एडमिशन टेस्ट का स्कोर चाहिए, आपको वेटेज ज्यादा मिल जाएगा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को, राइट? कंपनी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, राइट, जिसमें कंपनी खुद स्पॉन्सर करती है अपने एम्प्लॉइज को टू गो फॉर एमबीए, बट देयर आर सम कंडीशंस विद दैट बॉन्ड विद बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय। सो ऐसा कहीं अगर आप काम कर रहे हो और कंपनी आपको स्पॉन्सर करे, देन यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन इन आईआईटी मद्रास, राइट? डिफेंस पर्सनल के लिए भी देयर इज समथिंग डिफरेंट, डिफेंस पर्सनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेशनल, जो डिफेंस पर्सनल है, राइट, इफ यू इज समबडी इन योर फैमिली इज बिलोंग not in family, if you belongs to the defense, right, if you have done some kind of job in defense, right, कोई भी अगर आपने जॉब किया, देन आपको नेशनल लेवल एप्टीट्यूड कैट का स्कोर देने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यू, ठीक है, तो 55% ग्रेजुएशन के मार्क्स चाहिए आपको विद, अगर आप डिफेंस पर्सनल हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस, कंपोजिट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड विद ड्यू वेट्स टू। ना विद ड्यू वेट्स क्या है, वेटेज का परसेंटेज नहीं दिया, कैट स्कोर कंसीडर होगा, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर, ये सारी चीजें इसके अंदर, इसका ड्यू वेटेज लगा के फाइनल आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो ये सब वेटेज में आएगा। आईआईटी मद्रास को आप ऑप्शन में रख सकते हो बच्चों, राइट? ठीक है। Final selection, candidate from all categories shortlisted based on the composite score shall be called for a virtual interview. Final selection will be based on the following with the due weights. Again, due weights का mention नहीं किया हुआ. Virtual interview, composite score and other achievements. तो ये सारा आपका score, composite score में आपका CAT का score, 10th 12th ग्रेजुएशन वो सब आ जाएगा. इंटरव्यू जो आपका हुआ उसका इंटरव्यू में और अदर अचीवमेंट्स, राइट, ये सब इसमें काउंट होगा. वर्चुअल इंटरव्यू लास्ट ईयर के लिए था बच्चों, राइट? इस साल इंटरव्यू 1-on-1 होने वाले हैं या फिर वर्चुअल होने वाले हैं, इट्स नॉट नॉन, राइट? सो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट्स पे आई एम डिस्कसिंग ऑन दैट. आईआईटी रुड़की भी आप जा सकते हो. 9 लाख फीस है, 95 to 90 परसेंटाइल प्लेसमेंट्स, आपका एवरेज पैकेज 9 to 10, गुड आरओआई, यू कैन से दैट, राइट? एलिजिबिलिटी में कैट बीटेक भी नहीं चाहिए, राइट? ग्रेजुएशन विद कैट 2020 स्कोर और ये कैट 2020 स्कोर इसलिए क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, 2021 इस पर आ जाएगा, राइट? तो कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, यू कैन से दैट. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है? तो कहीं किसी भी कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसके लिए जा सकते हो.
IIT graduate admitted through JEE Advanced with a CGPA of 7.0 above on 10-point scale are exempted from the requirement of CAT score. तो आपको CAT का स्कोर नहीं चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो प्योरली कैट के स्कोर पे बेस होगा. तो एकेडमिक्स जिनके वीक्स हैं, आप कैट का स्कोर अच्छा ले आओ, आपका शॉर्ट लिस्टिंग इसमें डेफिनेटली हो जाएगा. राइट. कौन सा कॉलेज है ये? दिस इज IIT रुड़की. राइट, IIT रुड़की में आपको पूरा का पूरा शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो पार्ट है वो कैट के स्कोर के ऊपर है. राइट. पर्सनल इंटरव्यू 30%, वर्क एक्सपीरियंस 10%, 2 मार्क्स फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर. राइट. ओके. और IIT ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो CGPA 7 से अबव है तो फिर पर्सनल इंटरव्यू को 100% वेटेज होगा, बिकॉज उस केस में आपको कैट के स्कोर का रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपने IIT से ग्रेजुएशन किया, IIT रुड़की के केस में आपको फिर कैट देने की भी जरूरत नहीं है. बट नॉर्मली बच्चे तो इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे. तो कैट के वेटेज को 100% स्कोर है शॉर्टलिस्टिंग के लिए. फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग जो इंटरव्यू आएगी, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यू देना पड़ेगा. और इंटरव्यू में 30% है और वर्क एक्सपीरियंस 2 मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज. IIT धनबाद. राइट, इन्होंने MBA अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है बच्चों. फीस बहुत ही कम है, वेरी लेस फीस, 3 to 4 लाख. IIT धनबाद. राइट, सोच सकते हो इस कॉलेज के बारे में भी आप. 85 to 90% ब्रांड के ब्रांड वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें. IIT का कॉलेज है, रिसेंटली स्टार्ट किया MBA प्रोग्राम. फीस बहुत ही कम है, रिस्क फ्री है. यू कैन जस्ट नीड टू चेक इट. और रेकमेंडेड भी है, काफी अच्छा कॉलेज है ये. राइट, चेक कीजिएगा, बच्चों से बात करो जो अभी एट प्रेजेंट IIT धनबाद में पढ़ रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ जाना है या नहीं. ओके, क्या इसमें BTech चाहिए? नहीं चाहिए. नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री विल वर्क. राइट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ BTech डिग्री. राइट. ओके, बट एक यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के साथ आपको बैचलर डिग्री की होनी चाहिए. ग्रेजुएट्स, right, in any discipline with first class are having 60% mark or CGPA of 6.0 out of 10 or CGPA of 5.5 for SC/ST candidate or differentially able categories in their degree from a recognized degree with mathematics and static as one of subject in bachelor. तो मैथ्स या स्टैटिस्टिक आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप IIT धनबाद के लिए एलिजिबल हो. डिग्री कोई भी हो, BTech होना जरूरी नहीं है. Shortlisting for online interview process will be announced by the respective institution. Only those who are shortlisted will be invited to the online. ये सब बेसिक है. राइट. कैट, वैलिड कैट स्कोर चाहिए. लास्ट ईयर कैट 2020, तो इस साल तो आपको कैट 2021 का स्कोर चाहिए. द स्टूडेंट्स हु हैव BTech डिग्री फ्रॉम IIT with 8.0, तो उसमें भी आपको कैट के पेपर का देना जरूरी नहीं है अगर आपने IIT से किया हुआ है तो. राइट. सो बच्चों, ये सब आपके कॉलेजेस हैं. राइट. IIT से अगर आपको MBA ऑफर करना है तो IIT धनबाद, राइट, 1, ठीक है, रुड़की, राइट, जिसके एलिजिबिलिटी सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. मद्रास, राइट, कानपुर, बॉम्बे एंड खड़गपुर, मुंबई एंड दिल्ली. सो दीज आर द कॉलेजेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर गाइस. राइट. सो 6-7 कॉलेज. राइट. दिल्ली आपके पास ऑप्शन हो गया, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, धनबाद, मद्रास. सो 6 to 7 IITs आपके पास ऑप्शन में है. इनके फॉर्म की टेंशन भी नहीं है, अभी डेट कुछ नहीं आया है. कैट के स्कोर के बाद 95+ है, तो 2 आई गेस कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सभी के लिए आप एलिजिबल हो. राइट. डिटेल्स मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ समझा दिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please subscribe to the channel to get updates on the classes and videos on regular basis. Right. And don't forget to click on the bell icon. Thank you, and share it with all of your friends, guys. Thanks a lot.